Honorable Sri Ashwini Vaishnav ji, Union Minister for Railways, Information and Broadcasting, and Electronics and Information Technology, Government of India, distinguished dignitaries, esteemed guests, respected faculty members, and dear students, a very good morning to all. On behalf of Malviya National Institute of Technology, it is my privilege to extend a warm and respectful welcome to this distinguished gathering. Today, we are deeply honored by the gracious presence of Honorable Sri Ashwini Vaishnav ji, Union Minister for Railways, Information and Broadcasting, and Electronics and Information Technology, Government of India. Sri Ashwini Vaishnav ji's illustrious journey as a cabinet minister and his visionary leadership reflects his commitment towards excellence in higher education, technological innovation, and national advancement. As we now begin the formal proceedings, I would like to respectfully invite Professor N.P. Padi sir, Director MNIT Jaipur, to formally welcome our honorable chief guest through the traditional safa and sapling as a gesture of respect and a symbol of our shared commitment towards sustainability and growth. Thank you so much, sir. To formally welcome our distinguished guest and present the vision and aspiration of MNIT Jaipur, I would like to respectfully invite Director Sir to deliver the welcome address. Sir, we would be privileged to receive your reflection on our institute's vision and future directions. Thank you. Respected Honorable Sri Ashwini Vaishnav ji, distinguished guests, faculty, colleagues, dear students, media friends, ladies and gentlemen. It's my great privilege and honor to extend a warm and heartfelt welcome to Honorable Sri Ashwini Vaishnav ji on behalf of the entire MNIT Jaipur family. Sir, your remarkable journey from engineering and public service to leading some of India's most transformative ministries serve as a source of inspiration for all our students and faculty colleagues. Under your visionary leadership, the nation has witnessed unprecedented advancement in railways modernization, digital transformation, electronics manufacturing, semiconductor development, and communication infrastructure, all contributing significantly to the vision of self-resilient Bharat and technologically empowered India. Sir, MNIT Jaipur always attracts many of the brightest young minds in this country. In recent years, the institute has witnessed a growing enthusiasm among students for exploring and developing AI-driven solutions across diverse domains of engineering and technology. Realizing the full potential of their aspiration requires access to state-of-art computing infrastructure and high-performance computational resources. And to support this kind of cutting-edge research, innovation and skill development in AI and its application, MNIT Jaipur envisions establishing an AI-enabled computing lab equipped with advanced computing facilities, and that is one of the dreams of this institution in near future. Complementing this initiative, the institute seeks to strengthen multidisciplinary research and technology development through advanced facilities in emerging areas of national importance. In particular, MNIT Jaipur aims to facilitate semiconductor device design, especially 3D manufacturing,
and defect analysis through access to the ISC LAM Semiconductor Research Facility and the Institute's Material Research Facility equipped with modern characterization and fabrication infrastructure. These facilities will provide students and researchers with opportunity to engage in frontier research and gain hands-on experience in semiconductor technologies. Building upon its strong foundation in quantum technology, education and outreach, MNIT Jaipur has already trained more than 12,000 participants across the different training domains in quantum ecosystem. The institute now aspires to complement this intensive theoretical exposure by establishing a dedicated quantum computing research lab to provide in-hand experience on quantum technology. The proposed facility will cater the students, researchers, and faculty members of varying level of expertise through a structural learning mechanism. To instill a culture of innovation and experiential learning from the very first day of orientation of MNIT graduates, MNIT Jaipur also proposed to establish a Makers Lab as a hub for creativity, design, and hands-on problem solving. The Makers Lab will provide students with opportunities to transform ideas into prototypes, participate in multidisciplinary projects, and develop practical engineering solutions. Equipped with modern fabrication and prototyping tools, the facility will encourage innovation, teamwork, and entrepreneurial thinking while complementing classroom learning with real world applications. By fostering project-based learning and a maker mindset, the laboratory will motivate students to actively engage in technology development and interdisciplinary innovation throughout their academic journey. Together, the AI-enabled computing lab, semiconductor and MRC material research facility, Makers Lab, and quantum computing research laboratory will create a comprehensive ecosystem for innovation and research activity at MNIT Jaipur. Dear students, today present a unique opportunity to interact with a leader who has been at the forefront of shaping India's technological and infrastructural future. I encourage all of you to actively ask thoughtful questions and gain valuable insight from his vast experience spanning technology, governance, public policy, and finally, national development towards Viksit Bharat. Now, I welcome Honorable Sri Ashwini Vaishnav-ji towards the interactive session and look forward to an inspiring and enriching exchange of ideas. Thank you. Jai Hind, Jai Bharat. हिंदी या इंग्लिश? हिंदी? इंग्लिश? इंग्लिश? क्विज या लेक्चर? मिक्स? क्विज या लेक्चर? किसी ने हाँ नहीं बोला। क्विज से चालू करते हैं। चालू करें क्विज से। आप ही का क्विज होगा यार, मेरा थोड़ा ना होगा। सेमीकंडक्टर में सबसे एडवांस्ड चिप्स कितने नैनोमीटर की होती है? कोई हाथ नहीं खड़ा कर। प्रोफेसर्स नहीं बोलेंगे भाई। प्रोफेसर्स आउट है क्विज से। बताओ, चैट जीपीटी कर देते इतनी देर में तो यार। 2 नैनोमीटर्स। क्या नाम है? खड़े हो यार। अक्षत के लिए जोर से ताली बजाओ। अक्षत एक सेकंड खड़े रहना। 2 नैनोमीटर्स की चिप्स भारत में डिजाइन होती है क्या? कहाँ पे डिजाइन होती होगी 2 नैनोमीटर्स की चिप?
डिज़ाइन और फैब्रिकेशन में डिफरेंस है, समझते हो? डिज़ाइन कितने लोग समझते हैं, फैब्रिकेशन कितने लोग समझते हैं? फैब्रिकेशन माने उसको एक्चुअली फिजिकली बनाना, राइट? सिंपल है। और डिज़ाइन मीन्स द वे यू डिज़ाइन द एंटायर चिप। कहाँ पे डिज़ाइन होती है? मोस्ट एडवांस्ड 2 नैनोमीटर की, चलो कंपनीज बोलो, कौन सी कंपनीज? एनवीडिया तो सभी जानते हैं आजकल, TSMC भी सभी जानते हैं आजकल। कितने लोग ने TSMC का नाम नहीं सुना? नहीं सुना, हाथ खड़ा कोई करते हुए भी एक्चुअल में नहीं सुना, सच सच। सभी सच बोल रहे हैं। इतने तो सच कभी कॉलेज में बोलते ही नहीं थे यार, आज तक कभी कॉलेज में नहीं बोला। लेकिन एक चीज मुझे अजीब लगी, यहाँ पे कोई भी सीढ़ियों पे नहीं बैठा हुआ है। कॉलेज में सीढ़ियों पे नहीं बैठो, कब बैठोगे फिर? क्या प्रोफेसर साहब, आपने बहुत डिसिप्लिन लगा रखा लगता है। लगता है नहीं नहीं, ऐसा नहीं कि अभी आप बोलोगे बैठेंगे। चलो क्वेश्चन बैक। 2 नैनोमीटर्स की चिप्स कहाँ डिजाइन होती है? साउथ कोरिया, ताइवान, US, UK शायद, हाँ शायद, हाँ, और चाइना। कितने लोग जानते हैं कि भारत में 2 नैनोमीटर्स की चिप्स भी डिजाइन होने लगी है? जस्ट 5 साल पहले 2 नैनोमीटर की चिप्स डिजाइन अगर करने की, बैठो यार अक्षत बैठो, 2 नैनोमीटर्स की चिप्स डिजाइन करना, ये अगर क्वेश्चन पूछते थे हम, तो जनरली जो अभी आपने नाम लिए वही नाम आते थे। आज एनवीडिया, ARM, AMD, कॉलकॉम, ब्रॉडकॉम, मार्वेल, ये सब कंपनीज भारत में 3 नैनोमीटर्स और 2 नैनोमीटर्स की चिप्स डिजाइन करती है। सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री में कितना टैलेंट चाहिए, गेस करो? गूगल कर लो या चैट GPT कर लो, देखो जरा, कोई करो, जेमिनाई को पूछ लो, कितना टैलेंट चाहिए? ये इसने देखा हुआ है। गुड, क्या नाम है यार, खड़ा हो जाए। प्रदीप। अभी ताली कहाँ? अभी तो मैंने प्रश्न ही नहीं पूछा, अभी क्वेश्चन इसको पूछने वाला हूं। अभी क्वेश्चन तो, क्विज तो अभी चालू होगा ना। इसने वॉलंटियर किया कि मुझे क्विज पूछो। बताओ कितना टैलेंट चाहिए? गैस करो, गैस करो, गैस करो, कितना टैलेंट चाहिए? मतलब कितने लोगों की रिक्वायरमेंट है? कितना टैलेंट चाहिए मतलब कितने लोगों की रिक्वायरमेंट है पूरी इंडस्ट्री में? कितने यंग इंजीनियर्स की, आप जैसे कितने यंग इंजीनियर्स की रिक्वायरमेंट है? 10 lakhs। ओवरऑल सेमीकंडक्टर डिज़ाइन में पूरी दुनिया में अबाउट 1 मिलियन रिक्वायरमेंट है सेमीकंडक्टर इंजीनियर्स की। 1 मिलियन, करेक्ट? आपने बताया, प्रदीप ना, हाँ, प्रदीप ने अभी बताया कि सेमीकंडक्टर चिप की कॉम्प्लेक्सिटी क्या होती है। समझाओ यार, माइक लेके। सर आपने ही समझाया था कि एक सेमीकंडक्टर चिप बनाना लाइक ऐसा है कि एक नाखून पे रामचरितमानस लिखना। और उस टाइम आपके जो इमोशंस थे, जिस दिन चिप लॉन्च हो रही थी और नरेंद्र मोदी जी भी वहाँ थे, तो मैं लाइव देख रहा था उस दिन। अरे और वो आपके जो इमोशंस थे सर, हाँ, मेरे इमोशंस उस दिन थे, यस सर। क्योंकि कॉलेज में जब पढ़ते थे तो यार लगता था कि क्या भारत क्यों नहीं बना सकता चिप। अभी कौन सेमीकंडक्टर की बुक कौन सी पढ़ते हैं? हम तो जॉन हेज की बुक पढ़ते थे, JP हेज की बुक। आजकल कौन सी बुक से चालू करते हैं? VLSI की बुक थी वो, तब हम VLSI बोलते थे मोस्टली। अभी कौन सी बुक से स्टार्ट होता है? मतलब फर्स्ट सेमीकॉन 101 टाइप का कोई बुक होती होगी? नहीं होती, नहीं
इसी डिपार्टमेंट के हेड कौन है? आपके बिहाफ पे मैंने रैंकिंग ले ली प्रोफेसर साहब की। अभी भी JPS है? नहीं यार, चेंज हो गया होगा कुछ तो। दुनिया कहाँ पे माइक्रोमीटर से नैनोमीटर पे आ गई। नैनोमीटर से आगे, नैनोमीटर के आगे क्या है? किसने कहा ये? किसी ने सही जवाब दिया इधर। एंगस्ट्रॉम किसने बोला? खड़े हो यार, क्या नाम है? अंकुश। कुश के लिए भी ताली बजाओ यार, प्रदीप और कुश दोनों के लिए। अभी लोग एंगस्ट्रॉम में जाने लग गए। 15 एंगस्ट्रॉम, 10 एंगस्ट्रॉम, 8 एंगस्ट्रॉम, 7 एंगस्ट्रॉम, इस पे जाने लग गए। तो मैंने, चलो बैठो, मैंने ये क्विज इसलिए चालू किया कि कई बार हम क्वेश्चन माइंड में आता है कि देश की डायरेक्शन क्या है, देश कहाँ जा रहा है, किस तरह से हमारा रोल क्या होगा, हमारा एज इन यंग पीपल लाइक यू क्या रोल होगा आपका। बहुत रैपिडली दुनिया चेंज हो रही है, बहुत रैपिडली, और इस चेंजिंग वर्ल्ड में हमें सक्सेसफुल होने के लिए अपने आप को लगातार चेंज करना पड़ेगा, लगातार री इन्वेंट करना पड़ेगा, लगातार अपना कोर्स, अपना लाइफ का मिशन, वो सब चेंज करना पड़ेगा। मैंने सेमीकंडक्टर से इसलिए चालू की कि आने वाले समय में या आज के दिन भी अगर हम देखें तो दुनिया की इकोनॉमी की फाउंडेशन जिन चीज़ों पर है उनमें से एक है सेमीकंडक्टर। और सेमीकंडक्टर का ड्रीम दुनिया का बहुत पुराना, लंबे टाइम से कई देशों ने इसमें आगे प्रोग्रेस की। भारत का ये बहुत पुराना ड्रीम था। लंबे टाइम से भारत में ये था ड्रीम, यार हमें भी सेमीकंडक्टर बनाना चाहिए, हमें भी चिप्स में एक अच्छी ताकत बन के उभरना चाहिए। लेकिन जिन भी कारण से नहीं कर पाए, 1962, 1971, 1982, 84, कई बार एफर्ट्स हुए, 1990s में एफर्ट हुए, 2000s में एफर्ट हुए, फाइनली सक्सेस मिली। अब अपने को सक्सेस मिली और आज अपने पास देश में 12 सेमीकंडक्टर यूनिट्स का कंस्ट्रक्शन चल रहा है। उसमें से 2 में कॉमर्शियल प्रोडक्शन स्टार्ट हो गया है, 2 में कॉमर्शियल प्रोडक्शन स्टार्ट हो गया है। छोटी बात नहीं है, बहुत मेहनत लगती है। जब ये प्रोजेक्ट चालू किया, मैं सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री के CEO से मिलता था और मिलके उनको मैं इतना ही कहता था, 20-25 सेकंड से ज़्यादा मैं बोलता नहीं था, इतना ही कहता था कि मेरे देश में ये इंडस्ट्री अभी चालू नहीं हुई है, नई इंडस्ट्री है और मुझे इसमें कुछ नहीं आता है, सिखाओ। दैट यूज्ड टू बी माय पिच। और जो भी बोलते थे सारे नोट्स लेता था। अल्ट्रा प्योर वाटर, अल्ट्रा स्टेबल इलेक्ट्रिसिटी, पार्ट्स पर मिलियन तो हमने सबने सुना है, PPM तो हमने सबने सुना है, करेक्ट। पार्ट्स पर बिलियन और पार्ट्स पर ट्रिलियन में प्योरिटी। पार्ट्स पर ट्रिलियन यानी 10 टू द पावर -12 ना, इस तरह की प्योरिटी चाहिए। जब प्लांट लगता है तो उस प्लांट में अगर पाइपिंग 1 मीटर एक्स्ट्रा हो जाती है तो कंटामिनेशन हो जाएगा। इट्स दैट कॉम्प्लेक्स, दैट कॉम्प्लेक्स। समझाने के लिए समझाता तो इस तरह से था कि भाई नाखून के ऊपर अपना खुद का नाम लिखो, तो थोड़ी प्रैक्टिस करोगे तो लिख लोगे। अब नाखून पे अपनी कॉलेज के सारे स्टूडेंट्स का नाम लिखो, टफ होगा ना, डिफिकल्ट होगा। अब उसके ऊपर अपने स्कूल के, कॉलेज के, शहर के सभी स्टूडेंट्स का नाम लिख लो, कितना डिफिकल्ट होगा। वो उससे भी ज़्यादा डिफिकल्ट है नैनोमीटर्स में चिप का फैब्रिकेशन करना। रामायण लिखना इस नाखून के ऊपर उतना कॉम्प्लेक्स है, इसीलिए ये बहुत कम देश हैं जिसमें संभव हो पाया। और आज भारत उस देश में जुड़ा है, इसका कारण है, इसका कारण ये है कि जब भी लीडरशिप
बहुत अच्छी डिसाइसिव मिलती है देश को। लीडरशिप एक भविष्य का सोचने वाली लीडरशिप मिलती है, ऐसी लीडरशिप जिसने कंट्री के इंटरेस्ट के अलावा और कोई इंटरेस्ट नहीं सोचा, तब जाके ये काम पॉसिबल हो पाते। वो लीडरशिप आज हमारे पास हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी की लीडरशिप, वो संभव हो पाता है जब इस तरह की लीडरशिप मिलती है। वरना तो प्राइम मिनिस्टर पहले भी बहुत आए गए, ट्राई किया सबने, मैं नहीं कहता कि किसी ने ट्राई नहीं किया, ट्राई सभी ने किया, लेकिन डिफ़िकल्ट काम को करना। चिनाब के ब्रिज का किसने देखा है फोटो? चिनाब के ब्रिज का फोटो या वीडियो देखा होगा? नहीं तो अभी इंस्टा पे खोल के दिखाओ। अच्छा ये बताओ, आजकल आप लोग ज़्यादा यूज़ क्या करते हो, इंस्टा या डिस्कॉर्ड? डिस्कॉर्ड 1 2 3, इंस्टा और कोई नया? लिंक्डइन तो नौकरी ढूंढनी, फाइनल ईयर वाले लिंक्डइन, फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर नहीं। और कौन सा आजकल पॉपुलर? स्नैप और एक्स तो रेडिट भी है, रेडिट भी है, राइट। रेडिट कितने लोग? एक्स पे तो चलो, आजकल एक्स पे पोस्ट करते हैं या ड्रॉप करते हैं? बताओ भाई, एक्स वाले बताओ, जिसने एक्स कहा वो बताओ, पोस्ट करते हैं या ड्रॉप करते हैं? क्या यार, यंग बच्चे हो सब, लेटेस्ट टर्मिनोलॉजी क्या है? ड्रॉप करते हैं आजकल, पोस्ट नहीं करते। मुझे पता चला थोड़े दिन पहले, अपने बच्चों से बात कर रहा था कि मैंने बहुत अच्छी एक पोस्ट की है वीडियो, पापा आजकल पोस्ट नहीं करते, आजकल ड्रॉप करते। जनरेशनल गैप तो आ ही जाता ना। हम लोग यहाँ पर MNIT में 3 चीज़ें करना चालू करेंगे। एक तो नई क्वांटम लैब चालू करेंगे। क्वांटम आज का जो हमारा वर्ल्ड है, इस वर्ल्ड से आगे आने वाले समय की टेक्नोलॉजी है। आज हम AI पे हैं, आगे AI के बाद में नेक्स्ट जो वेव आएगी, बड़ी वेव, दैट विल बी क्वांटम। उसमें हमको तैयारी करनी है। दैट्स वाई इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट वी स्टार्ट अंडरस्टैंडिंग व्हाट क्वांटम इज, एंड आई वुड लाइक MNIT टू टेक दैट लीड इन Rajasthan to be the major quantum learning, quantum teaching, quantum experiencing college in the country. इसके लिए लैब तो स्टार्ट करेंगे ही करेंगे, we'll also collaborate with many really good industries. IBM has super good quantum capabilities, और उनको भी बोलेंगे, और भी कई लोग हैं जो इसमें काम कर रहे हैं, तो we'll ask them to collaborate here in MNIT. दूसरा, सेमीकंडक्टर्स की मैन्युफैक्चरिंग और डिज़ाइन, 2 चीज़ें हैं, राइट? फैब और डिज़ाइन। फैब वाला जो काम है, that is another work which is extremely complex, extremely complex. उस काम को सीखने के लिए there is a complete simulation, a real life simulation thing, which is from a company called LAM. LAM नाम सुना है किसी ने? सुना है ना? LAM और अप्लाइड दोनों, LAM अप्लाइड, ASML, टोक्यो इलेक्ट्रॉन, ये 4 जो कैपिटल जो मशीनें होती है सेमीकंडक्टर बनाने वाली, उसमें ये चारों टॉप नेम्स हैं, राइट? तो LAM ने बनाया एक सेमाईवर्स में प्रैक्टिकली you can get into a fab virtually, and you can actually see how the machine will be operated, so that you can have a real hands-on experience before you go to a semiconductor fab. वो काम हम सेमाईवर्स का MNIT में चालू करेंगे। सेमीकंडक्टर डिज़ाइन टूल्स हमारे यहाँ सिनॉप्सिस के चालू हुए, सिनॉप्सिस और कैडेंस। कितने लोगों ने यूज़ किए?
कैसा एक्सपीरियंस है यार? कितने, हाउ मेनी आवर्स यू मस्ट हैव यूज्ड? खड़े हो जाओ, अभी तो आपने अपना नाम बताया था, कुश ना? हाँ हाँ, और किसने यूज किया? कैडेंस, सिनॉप्सिस, क्या नाम है अपना? थोड़ा तेज बोलिए। हिमांशु। हिमांशु, कैसा रहा एक्सपीरियंस? क्या चिप डिज़ाइन की? 180 नैनोमीटर पे मैंने क्या फंक्शन था उसका चिप का? सर उसकी अभी डिजाइनिंग कर लेआउट तक गया हूँ सर। लेआउट बनाया ना? जी सर। तो अभी अपने देश में करीब करीब, क्षितिज कितनी होगी अभी लेटेस्ट? 323 कॉलेजेस में और यूनिवर्सिटीज़ में ऐसे ही पास होते थे किसी को पूछ के फोन अ फ्रेंड 323 कॉलेजेस में और यूनिवर्सिटीज़ में वर्ल्ड के लेटेस्ट सेमीकंडक्टर डिज़ाइन टूल्स स्टूडेंट्स यूज़ कर रहे हैं और चिप्स डिज़ाइन कर रहे हैं, और डिज़ाइन करके उनकी मैन्युफैक्चरिंग SCL मोहाली में करते हैं हम। मोहाली में जो सेमीकंडक्टर लेबोरेटरी है उसमें करते हैं और उसको रियल में टेस्ट करते हैं। मैंने अभी पिछली बार डेवोस में सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री के जो सारे कैप्टन्स थे उनको पूछा कि दुनिया में कितनी यूनिवर्सिटीज़ है जहाँ पर इस तरह की कैपेबिलिटी है, जिसमें सीमेंस, कैडेंस, सिनॉप्सिस, ये सारे टूल्स स्टूडेंट्स को अवेलेबल है और वो एक्चुअल डिज़ाइन करते हैं और एक्चुअल उसका मैन्युफैक्चरिंग होके उसका रियल टेस्ट हो पाता है बोर्ड में लगा के, PCB में लगा के, उसका बोर्ड में लगा के उसका पूरे सर्किट का टेस्ट हो पाता है। People could not count more than 20 universities in the entire world. We have 323 places where, और पूरे देश भर में, जम्मू से लेके कोच्चि तक, शिवपुर आसाम में लेके गुजरात में कच्छ तक, पूरे देश में Tier 2, Tier 3 सिटीज़ में भी, और उन सब स्टूडेंट्स ने चिप्स डिज़ाइन की है। तो मेरा मन है कि आप भी MNIT में इसको एकदम सीरियसली लो, क्योंकि इसमें अपॉर्चुनिटीज़ आ गए। अभी कुछ दिनों पहले क्वालकॉम का जब 2 नैनोमीटर का चिप डिज़ाइन हुआ इंडिया में, तो दे इनवाइटेड मी देयर। तो वहाँ मैंने पूछा, जो फ्रेश स्टूडेंट्स कॉलेज से आके क्वालकॉम में जॉब चालू किए थे, तो उन्होंने कहा कि हमारा कॉन्फिडेंस लेवल इतना हाई है बिकॉज वी हैव सीन दिस टूल्स इन अ कॉलेज इटसेल्फ। रियल इंडस्ट्री के टूल्स है, रियल इंडस्ट्री के टूल्स, एकदम रियल वर्ल्ड के टूल्स हैं, एंड दे हैड एक्सपीरियंस्ड एंड वर्कड ऑन दोज टूल्स राइट इन द कॉलेज इटसेल्फ। तो कॉलकॉम के CEO बोल रहे थे कि 2-3 साल लोगों को टूल्स से फैमिलरिटी सीखने में लगता है, वो टाइम हमारा एकदम कंप्रेस हो गया, ज़ीरो हो गया। नाउ वी जस्ट द स्टूडेंट्स कैन एक्चुअली वर्क फ्रॉम डे वन ऑन दोज टूल्स। तो मेरी रिक्वेस्ट है आपसे, आप भी इसका पूरा यूज़ करो। हमारे पास कितने वर्क स्टेशंस पे एक्सेस होगा इन टूल्स का, सिनॉप्सिस का? हाँ हाँ, मतलब एक एनी पॉइंट ऑफ टाइम वी कैन हैव एटलीस्ट 20 और 30 स्टूडेंट्स हु कैन वर्क ऑन इट, राइट? तो मोस्ट इसको आप केवल EC में मत रखना, EC और कंप्यूटर साइंस के हिसाब से मत सोचना, क्रॉस डिसिप्लिन इसको मानना। प्रोफेसर साहब, इसको आप क्रॉस डिसिप्लिन मानना। मान लो मैकेनिकल वाले कुछ डिज़ाइन करना चाहे, मान लो सिविल वाले अपने तरीके से कुछ सोचे, हाँ, मान लो ब्रिज के स्ट्रेसेस क्या आ रहे हैं उसके लिए कोई चिप डिज़ाइन करने का सोचे कोई, तो यू कैन थिंक इन दोज वेज ऑल्सो। क्रॉस फंक्शनल इसको सोचना चाहिए, क्रॉस डिसिप्लिन सोचना चाहिए, है ना, वैसा ओपन रखना चाहिए हमें। तो इसको यूज़ करो। और पहली चिप डिज़ाइन अभी MNIT से नहीं हुई? नहीं बनी ना? तो कितने लोग टारगेट लेंगे? MNIT से चिप डिज़ाइन होगी तो मुझे बुलाना यार, करोगे? सोच रहे कि क्या टारगेट दे दिया यार। इतना डिफिकल्ट नहीं है। धनबाद, जम्मू, रोपर, राउरकेला, कई जगह से कर लिया है, इतना डिफिकल्ट नहीं है। डिफिकल्ट ज़्यादा है क्या? कुश और हिमांशु ना, इतना डिफिकल्ट है?
तूने तो लेआउट बना लिया ना, कुछ तो कह रहा था। उसने कहा, हिमांशु ने। यस सर। नो सर, इतना डिफिकल्ट थोड़ा ना है, डिफिकल्ट तो है सर। डिफिकल्ट तो है, सच है। बैठना, सच बोला तूने, अच्छा लगा। लोग ऐसे ही बोल देते कि डिफिकल्ट नहीं है। डिफिकल्ट तो है, लेकिन आता भी, मज़ा भी आता है उसमें, काफ़ी मज़ा आता है। थोड़ा उसमें फोकस की ज़रूरत ज़्यादा पड़ती है, मतलब मोबाइल फ़ोन स्विच ऑफ करके ही कर सकते हो काम। ऐसे टेक्स्ट प्रॉम्प्ट आता रहेगा, उसमें नोटिफिकेशन आता रहेगा तो काम नहीं कर पाओगे। लिटरली शट डाउन करके, ब्रेन को ऑन करके, बाकी सब चीज़ें शट डाउन करके ही काम करना पड़ेगा, तभी जाके। बहुत फोकस चाहिए, कंसंट्रेशन ज़्यादा चाहिए बेसिकली। थॉट प्रोसेस, कंसंट्रेशन वो थोड़ा ज़्यादा चाहिए होता है। इन टूल्स में कोई कमी रहे तो मुझे बताना आप। कोई भी दिक्कत अगर आए इसमें, आपसे जुड़ा रहेगा क्षितिज, और कोई दिक्कत आए तो बताना, इसमें कहीं भी कोई दिक्कत आए तो बताना, विल सॉल्व इट। तीसरा काम करेंगे, विल स्टार्ट एआई का एक लैब चालू करेंगे यहाँ पर, एंड फोकस विल बी कनेक्टिंग इट विद द एंटायर एआई मिशन की नेटवर्क। कैसे? जैसे आईआईटी जोधपुर है, IIT Jodhpur is working on a very interesting technology development. How do you detect deep fake with full authenticity? Deep fake को deep fake कहना अपने आप में एक तरीके से, but how can you say with good confidence level that ये deep fake है? उसका पीछे technical confidence, उसकी technical thinking, उसका measurement, वो सब. And they are developing this new technology. So how do you connect with such institutions? That will be the aim of setting up the AI lab. तो ये 3 काम मेजर करेंगे, क्वांटम लैब, लैम का सेमाइवर्स की ट्रेनिंग का प्रोग्राम, और AI की कैंपस लैब। फिर एक बार और वापस आएंगे आपके पास, तब कुछ और, तब तक देखते हैं चिप कितनी डिज़ाइन करता है हिमांशु। हिमांशु को मैं पकड़ूंगा। थोड़ी सी बात रेलवे की भी कर लें। कितने लोग राजस्थान के हैं यहाँ पर? वाह। और कितने लोग राजस्थान से बाहर के हैं यहाँ पर? वाह, सिग्निफिकेंट नंबर्स। थोड़े से आपको स्टेशंस के फ़ोटो दिखाता हूँ जो अभी काम चल रहा है, ना, जिससे कि आपकी जनरेशन को बेटर स्टेशंस मिले। पूरे देश में 1300 स्टेशंस नए बन रहे हैं रेलवे के, राइट? ये जयपुर वाले कितने हैं? वाह, बाप रे, जयपुर वाले ज़्यादा है। ये आपका जयपुर का स्टेशन। कितने लोगों ने फिजिकली जाके देखा है जयपुर का स्टेशन बनते हुए? अभी जो काम चल रहा है कैसा है यार, कैसा है? बताओ ना, खड़े होके बताओ। चलो सच तो बोला। किसने देखा जाके एक्चुअल में? सेकंड एंट्री किसने देखी? आपने देखी? गांधीनगर स्टेशन, आई एम लाउड। गांधीनगर स्टेशन, तो सर obviously right now we can't make much of it, but the Khatipura station is very good, and even the जयपुर सेंट्रल स्टेशन का सेकंड एंट्री किसी ने देखा? आपने देखा? क्या नाम? कैसा है? सुपर यार, इतनी नॉलेज तो कैसे आएगी? I have seen it from a phase of years, 10 years. I have been changing the Jaipur and Jaipur station. अच्छा, गुड यार, सुपर, लाउड क्लैप फॉर हिम। बहुत अच्छा। ऐसे कनेक्टेड रहना चाहिए अपने शहर से, ऐसे कनेक्टेड रहना चाहिए, अच्छा रहता है। ये जयपुर का स्टेशन बन के तैयार हो जाएगा करीब another 2 years। बाकी देशों में क्या होता है जब स्टेशन, बैठो ना, जब बाकी देशों में क्या होता है जब स्टेशन बनाते हैं ट्रैफिक को बंद कर लेते हैं, यानी ट्रेन्स वहाँ पे आ ही नहीं सकती। अपने यहाँ तो ट्रेन अगर एक दिन भी बंद हो जाए तो आप लोग ही आ जाओगे बाहर। तो मुश्किल हो जाता है अपने, बिकॉज वी हैव सो मच ट्रैफिक, सो मेनी पीपल डिपेंडेंट ऑन रेलवेज। तो बिना बंद किए काम करते हैं अपन, और करीब 5 to 6 years का प्रोजेक्ट रहता है, 4 to 6 years का प्रोजेक्ट रहता है। अच्छी प्रोग्रेस है,
काफ़ी अच्छी बन गया है। अगर जिन्होंने नहीं देखा वो भी एक बार ट्राई करो, जाके देख के आओ, अच्छा लगेगा। मैं जीएम साहब है हमारे, अमिताभ जी, जीएम साहब एक बार स्टूडेंट्स का ऑर्गेनाइज करो ना, खासकर जो आर्किटेक्चर वाले स्टूडेंट्स हैं उनका तो ऑर्गेनाइज करना ही चाहिए प्रोफेसर साहब। जाके देख के आए। ये गांधीनगर जयपुर, ये गांधीनगर जयपुर। इसमें गांधीनगर जयपुर की एक और ख़ास बात है, किसको पता है? वो बताओ, पीछे बताओ। है ना, सारे ही यहाँ पे जितने लोग हैं, एंटायर स्टाफ इज वुमेन स्टाफ। इंटरेस्टिंग है। जैसलमेर का है यहाँ कोई? फिर भी देख लो, जैसलमेर एकदम इतना सुंदर बना। ये बन के कंप्लीट हो गया अभी, अब इनॉग्रेशन लेवल पे आ गया है, काम चालू, मतलब ऑलरेडी फंक्शनल स्टेशन बना है। इतना सुंदर बना है, इतना सुंदर बना है, लोग आके सेल्फियाँ खींचते हैं वहाँ पे। जोधपुर का है कोई स्टूडेंट्स में से? जोधपुर में कहाँ रहते हो? प्रताप नगर में। ये जोधपुर का स्टेशन बहुत अच्छा बन गया है, करीब करीब 60-70% काम इसका हो गया है कंप्लीट। देखा काम चलते हुए? नहीं देखा है? क्या नाम है? थोड़ा तेज बोल रहा है यार, क्या यंग उम्र में? भवेश। अलवर से है कोई यहाँ? काफी लोग हैं। ये आपके अलवर का स्टेशन। बीकानेर भुजिया या रसगुल्ला, दोनों ही बीकानेर वाले? कोई नहीं यहाँ पे? बीकानेर की भुजिया के बिना कभी काम चलता है क्या? ये बीकानेर का स्टेशन। कोटा, ये कोटा का स्टेशन बन के, ये तो इनॉग्रेशन की स्टेज पे आ गया, कंप्लीट हो गया। अजमेर, देख ले यार, दूर है बहुत। अजमेर का स्टेशन अच्छे बने स्टेशन, और केवल बड़े शहर ही नहीं, छोटे शहरों में भी बहुत अच्छे स्टेशंस बने। ये आबू रोड, पाली मारवाड़, जालोर। अभी थोड़े दिन पहले जालोर गया था, इतना सुंदर बना है स्टेशन, इतना सुंदर बना है, और शहर के अंदर बिल्कुल जैसे ना शहर का हिस्सा, कि जैसे यहीं पे था हमेशा से, वैसा एकदम वैसे इसका आर्किटेक्चर इस तरह का है। वंदे भारत में कितने लोग बैठे? कैसा एक्सपीरियंस? ठीक, अच्छा। इसकी डिज़ाइन के बारे में सुना होगा। एक वीडियो आपको दिखाता हूँ, दिखता है यहाँ पे? दिखेगा? नहीं दिखेगा ना? क्योंकि 800 एम्पियर की करंट लेनी है ऊपर ओवरहेड इलेक्ट्रिकल वायर से, उस करंट को, एसी करंट है वो, उस करंट को पहले डीसी में कन्वर्ट करना है, फिर बाद में डीसी से वापस एसी में कन्वर्ट करना है, और फिर मोटर को चलाना है। और मोटर का स्पीड ये देखो, ये देखो,
इलेक्ट्रिकल प्रपल्शन सिस्टम जो होता है ट्रेन का, दैट इज मोस्ट कॉम्प्लेक्स आइटम ऑफ अ ट्रेन। लास्ट ईयर हमने, भारत ने प्रपल्शन सिस्टम्स ट्रेन के किस किस देश को एक्सपोर्ट किए, भारत में डिज़ाइन, भारत में बने हुए, गेस करो, क्विज। ऑस्ट्रेलिया को तो मेट्रो एक्सपोर्ट किए, और पर प्रोफेसर्स को बोलने का अधिकार नहीं है। गेस कर लो, मैंने हिंट तो पहले दे दिया था। जर्मनी जर्मनी को एक्सपोर्ट किया, फ्रांस को एक्सपोर्ट किया, पोलैंड को एक्सपोर्ट किया, इटली को एक्सपोर्ट किया और यूएस को एक्सपोर्ट किया। मैंने ये एग्जाम्पल्स इसलिए दिए कि आपकी जो जनरेशन है, आपकी जनरेशन के लिए जो फाउंडेशन बनानी है, वो काम हमारी पॉलिटिकल पार्टी कर रही है। हमारी गवर्नमेंट आपकी जनरेशन के लिए एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन बनाने का काम कर रही है, जिससे कि आप लोग जब वर्ल्ड में, रियल वर्ल्ड में जाओ, एकेडमिक वर्ल्ड से बाहर आके, तो नई तरह की अपॉर्चुनिटीज़ आपको मिले, नए तरह के जो ऑप्शंस हमारे टाइम में नहीं थे, वो ऑप्शंस आप सबको मिले। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट, बहुत अच्छा करो। Thank you so much, sir. Thank you, Honorable Minister, sir, for your inspiring address, for your encouraging words, especially for new innovations, to the students, faculty, and academic community of MNIT Jaipur. Sir, as you talked about the 3 initiatives within the academic campus, we will try to be responsibly cultivate and participate into it to foster innovation and academic excellence within the campus. As we continue with today's proceeding, we arrive at a significant moment that reflects MNIT Jaipur's continued commitment towards innovation and institutional advancement. It is my privilege to respectfully invite Honorable Sri Ashwini Vaishnav ji to inaugurate the digital e-plaque by pressing the remote button and to formally launch the Makers Lab. These initiatives together symbolize the Institute's. हमारे साथ 2 बहुत बड़े डिग्निटरीज आज साथ हैं, हमारे जयपुर के एमएलए श्री गोपाल शर्मा जी, और राजस्थान गवर्नमेंट में एनर्जी मिनिस्टर श्री नागर जी साथ हैं यहाँ पे, और साथ में हमारे जनरल मैनेजर रेलवे के भी साथ हैं यहाँ पर, अमिताभ जी। तो मैं आप सबको भी रिकॉग्नाइज करता हूँ। Thank you so much, sir. As a token of gratitude and remembrance of this distinguished visit, I would like to invite Director Sir, MNIT Jaipur, to present the institutional memento to our esteemed Chief Guest, Sri Ashwini Vaishnav ji.
आपने रिबन एक जगह पे सारी चीज़ आ जाती है, एक जगह पे सारी चीज़ आ जाती आपका कहना है कि वो रोड को जब आप बैकग्राउंड सर इस ट्रांसफॉर्मेशन में आपको कुछ ऐसा फील समझना चाहिए रियलिटी के साथ अगर हम अपने आप को चेंज करते हैं तो सबसे लाइफ में हम एकदम कॉन्स्टेंट रहेंगे तो मुश्किल अगर हम अपने आप को चेंज करने के लिए ओपन माइंड रहें तो अच्छा बड़ा सर हाउ वी कंट्रीब्यूट टू रेलवे विथ यू बात करना आराम से यार हम आपके कैसे साथ दे सकते हैं रेलवे में एज ए गवर्नमेंट मैंने भी प्रोफेसर साहब से भी बात की थी कि क्या हम प्रोजेक्ट्स यहाँ पे कर सकते हैं लाइटिंग में प्लान करके पहली बार आया हूँ कहाँ से हमारा विषय आ थैंक यू यार अच्छा लगा थैंक यू सर स्टूडेंट्स के साथ बातचीत करने का मौका मिला बहुत ही एक पुरानी समृद्ध इतिहास वाली कॉलेज है बहुत अच्छी टेक्नोलॉजी में लीडरशिप है एनालाइज यहाँ पर 3 नए इनिशिएटिव्स का इनिशिएट हुआ एक तो क्वांटम लैब बनेगी MNIT जयपुर में और क्वांटम आज जो AI का हम पावर देख रहे हैं क्वांटम उससे भी आने वाले समय में उससे अधिक पावर की एक टेक्नोलॉजी की है उसके लिए स्टूडेंट्स को हम कैसे तैयार करें उसका काम इसमें क्वांटम लैब में होगा सेकेंड सेमीकंडक्टर्स की फैब्रिकेशन का जो काम है यानी सेमीकंडक्टर को जो मैन्युफैक्चर करने का काम होता है उस काम को सीखने के लिए एक बहुत अच्छा सिमुलेशन सिस्टम है सेमाइवर्स सिस्टम को MNIT जयपुर में स्टार्ट करेंगे जिससे कि यहाँ पर स्टूडेंट्स को सेमीकंडक्टर फैब्रिकेशन की ट्रेनिंग मिल सके साथ ही साथ जो सेमीकंडक्टर डिज़ाइन के जितने मोस्ट मॉडर्न टूल्स हैं वो सारे टूल्स यहाँ पे स्टूडेंट्स को मिले हैं यूज़ करना चालू है स्टूडेंट्स ने कहा कि अभी सीखने में और प्रयास करना पड़ेगा
तो आज स्टूडेंट्स को चैलेंज दिया है कि जल्दी MNIT में बनाएं, अपनी एक चिप बनाएं और चिप बना के उसको मैन्युफैक्चर कराएं। तो कई कॉलेजेस में करीब 330 कॉलेजेस में इस तरह का प्रयास चल रहा है। तो AI का पूरा AI मिशन का जो पूरा नेटवर्क है उसमें MNIT। सर रेलवे की भी तस्वीर अभी से पूरा